All right, hi guys. GK is very important for almost all the exams, and trust me, guys, जिस exam में GK आ गया ना, GK is the most scoring area. Everybody is scared of GK, no doubt about this. But GK is trust me the most scoring area. तो कोई पढ़ता नहीं है. The main problem for GK is कोई पढ़ता नहीं है. cetking.com/GK I gave the homework to complete Jan, Feb and March का PDF. किस किसने किया? सच्ची सच्ची बताना. किस किसने किया? I'm just launching the poll here. Please tell me if you have done that homework. Okay, so this test can work both ways. 17%, okay, 15, 12, 15% people did, and 85% have not done the homework. 14% ho gaya abhi. Okay, so 15% people almost said they have done the homework, and 85% people have not done the homework. तो करेंगे तो कैसे होएगा यार? Okay, to tell the fact, मैंने खुद नहीं किया था. 16% हो गया. अरे वाह, छा गए तुम तो यार. I'm just sharing the result with you. You can see the result. 16% people have done the homework and 84% have not done anything. हाँ ऊपर ऊपर से यार obviously. See, today we are doing for the, you can only study GK 2 days before the exam. तुम छोड़ो यार, मैंने खुद 2 दिन पहले खुला था. Okay, but if we can study now, so what we're going to do, we will complete GK last 12 months का GK now. And then when I revise again, I'll remember even the options. ये होता है. अगर आपने कभी आपको याद हो maths, verbal, logic, if you see the question 2 times, third time you will remember the option as well. इसका आंसर 200 है, इसका आंसर 100 है. ऐसा होता है. तो मेरे साथ होता था, आप लोग का पता नहीं. Fine. So this will act as an eye opener for 86% people. Let's see if you can answer the questions or not. Fine. Along with the current affair, we look at the static GK as well. For example, who won the Nobel Prize in 1907 for literature? 1907? अरे 1919 में कौन जीता? मेरे को वो नहीं पता. तुम सर 1907 की बात कर रहे हो. रुडयार्ड किपलिंग, रोलैंड रॉस, वीएस नैपल या रविंद्रनाथ टैगोर? I can't know. 1907 में the only person I know Kamya is Rabindranath Tagore. They're the only known person to me who have won Nobel Prize. बाकी तो मैं जानता भी नहीं हूँ. Okay, all these things is covered in our GK CK 30 different videos on GK which you have to see on static GK. Okay, मैं आपको हिंट देता हूँ. एक बंदा था, he wrote a book called Jungle Book. कुछ याद आया? जंगल बुक कुछ याद आया? मोगली, बगीरा, शेर खान, जंगल बुक. दिस गाय का नाम was रुडयार्ड किपलिंग. रुडयार्ड किपलिंग born, brought up, lived all his life in Mumbai. ये लो, मुंबई का बंदा. हाँ था अंग्रेज, था तो गोरा, लेकिन born and brought up in India. उधर जाके नोबेल प्राइज जीत के आया यार, पब्लिक को मालूम ही नहीं है. His museum is still there in JJ Hospital. VT, his house is still there. अपने को मालूम ही नहीं है. Examiner ढूंढता है ऐसे question which are very important but people don't know. So what I've done is, one day I sat and made a video for all the Indians who have ever won a Nobel Prize. जितने भी इंडियन आज तक नोबेल प्राइज जीते हैं, इंडियन या इंडियन रिलेटेड और अब फॉरेन पर्सन लिविंग इन इंडिया. देख भाई, एक बार जो इंडिया आ गया, हम नाम छापेंगे उसका, सीधी बात है. फाइन. इंडियन जो बाहर चला गया, उसका भी हम नाम छापेंगे. ओके, एक बार पैर रख दो हमारे यहाँ पे, हम तुम्हारा नाम दलाई लामा को भी इंडियन मानते हैं. अभी इंडिया में ना आजकल बस हमारा हो गया ये. फाइन. सो वी विल गो थ्रू एवरी पर्सनैलिटी एंड हिज हिस्ट्री so that I remember that all my life. अभी रुडयार्ड किपलिंग का नाम सारी उम्र याद रहेगा आपको. 1907 में he won the Nobel Prize. चलेगा, because photo, movies हमको याद रहती. Why? Because a movie. Okay, so go to the sign courses, e-classes, GK 30. There are 30 videos on that, rivers के ऊपर, dances के ऊपर with a diagram. Okay, let's look at the first question of January 2021 now. DGCI have formally announced that Covishield and Covaxin. See, everybody know about the medicine. I can't give you a question based on Covaxin and Covishield. What question I'll do? I'll give the question, find the full form of CDGI and CDSCO.
find the full form of CDGI and CDSCO. So what I'm doing is I'm converting a current affair का question into a static GK question. हाँ जी, इसके लिए I can use options. आप मेरे को बताओ, look at options. ड्रग कंट्रोलिंग होगा कि ड्रग कंट्रोलर? कंट्रोलिंग कंट्रोलर. ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी? इट्स ऑलवेज कंट्रोलर. कंट्रोलिंग नहीं होता है, कंट्रोलर होता है. तो ये दो ऑप्शन निकल गया. वो थोड़ी सी अकल चाहिए यार, नकल के लिए थोड़ी सी अकल चाहिए. आई कैन यूज जी स्ट्रेटजी एवरीवेयर इफ आई अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स. अरे ये ड्रग्स, वो वाला ड्रग नहीं. अरे बाबा, तुम शाहरुख खान का बच्चे को जेल, तू साला यही सोच. वो ड्रग्स अलग है. ये जान दो, माफ कर दो मुझे, मेरी गलती, मेरी गलती में आया यहां सिखाने के लिए तुम्हें. ओके हाँ जी, हो गया फर्स्ट पार्ट. तो आई कैन सी, आई कैन अज्यूम, आई डोंट नो द आंसर है नहीं. जर्नल इंटरनेशनल के जर्नल ऑफ इंडिया, किसके होने के यार? आई डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस थिंग. किसके होने के चांसेस ज्यादा है, इंडिया के इंटरनेशनल? इंडिया होने के चांसेस ज्यादा है. सो अगर तुक्का मानना ही है तो आई मार्क आंसर डी. दिस इज द रॉकिंग जी स्ट्रेटजी. इफ दे गिव यू क्वेश्चन ऑफ फुल फॉर्म, जय माता दी करके मार्क करके आओ. आंसर डी. कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल ऑफिस, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है. या आंसर इज डी डोंकी. Fine. So this is all the things which are based on the 2000 January 2021 का news with negative marking. Yes. See, if you remove two options, then mark कर सकते हो. Dash is slated to be presented on February 1st, 2021. Is going to completely paperless. This is the first time since independence that it is not printed. टेंडर तो ई-टेंडर तो कब से आ रहे हैं? ई-टेंडर started long time ago. One nation, one gas grid scheme. Schemes के बारे में again I don't know. Digital payment anyway is online. So the only possible answer is union budget. आंसर भी आज ही पढ़ा. Exactly अभिषेक, मैं यही चाहता हूं. अगर आप PDF पढ़ोगे ना तो you will remember all these words. So guys, ctaking.com/gk, please download last 1 year का GK especially, and you have to complete CK GK shorts of last 1 year. आज का पढ़ा याद रहेगा. अभी नवंबर में जाके when I revise all these things, I'll remember everything. Birth anniversary of Dash on 23rd January will be celebrated as Prakaram Divas. हाँ जी, कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस्ड पराक्रम दिवस. राजीव गांधी के लिए होने के चांसेस कम है बिकॉज द पॉलिटिकल प्रेशर. सावरकर के नाम पे भी कम आएंगे. द ओनली पॉसिबल आंसर इज इधर वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस. अगर तुक्का मानना ही है, इट हैव टू बी इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल. सेल्फलेस सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, दैट्स योर हिंट. आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ए. यार अभी ये अगर मैंने पढ़ा है तो मैंने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आई बी कंफ्यूज. बट इफ यू आर डाउन टू द लास्ट टू ऑप्शंस, देन जय माता दी करके मार्क कर दो. इफ यू आर डाउन टू लास्ट टू ऑप्शन, जय माता दी करके मार्क करो. ओके ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. 26 जनवरी सबको मालूम है इज रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे ये स्टार्ट कब हुआ? कब स्टार्ट हुआ? इसमें क्या ये हर जगह देखिए 1947. ये लो 1949 वाला भी आया ऑप्शन. 48 भी बोल दो, खत्म करो. 1948 एनीबॉडी? 1948 एक तो बोल दो यार. 90 बस तू ही मेरा असली बंदा भाई, तू ही मेरा असली भाई है. 1948 का ऑप्शन भी आ गया. डूब मरो कमीनो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में. ओके आंसर इज 26 जनवरी 1950. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में. उसके 3 साल के बाद 1950 में आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन. हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन? हु वाज द चेयरपर्सन? हु रोट द चेयरपर्सन? अंबेडकर. यस, डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द चेयरपर्सन. ये चीजें आपको नाउ 26 जनवरी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. रिपब्लिक डे कब होता बेटा? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. व्हेन इट स्टार्टेड
First question which can come. Can you see that what I've done is I've converted the current affair question to static GK question because anything can come in the exam. Second question, 26 जनवरी से पहले, before the constitution came into effect, which of the following was used? अब तो मोदी जी करेंगे, अब तो जो करेंगे मोदी जी करेंगे, वो बात अलग है. इससे पहले क्या यूज होता था? These are the tricky thing. 1947 was a trap. Is a trap. Answer is Government of India Act 1935. अब यार अभी ये जो आर्टिकल पढ़ेगा वो आंसर कर सकता है, जिसने आर्टिकल नहीं पढ़ा वो नहीं कर सकता. ओके. 1950 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पिक्चर. बिफोर दैट Government of India Act 1935 used to be used. Which of the following which of the following is conferred with the Padam Vibhushan इस साल का, except of 2020? Okay, 2020 का award is given in 2021. सिद्धांत यस. हाँ जी, मैं तो किसी को नहीं जानता यार. मैं तो किसी को भी नहीं जानता. I don't know any of these. The only तमिलनाडु, केरला, इंडियन को मिलना चाहिए. मेरे को लगा जापान वाला आउट होगा, लेकिन यूएस वाला भी है. इधर तुक्का नहीं मारने का बेटा, पंगा नहीं लेने का, ठीक है? इधर तुक्का नहीं मारने का यहाँ पे. गुड यार, पीपल नो द आंसर. ओके, सी टोटल 119 पर्सनैलिटीज को पद्मा अवार्ड दिया गया है बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कोविंद सॉरी, किसने दिया है? ओके, नाउ हियर आर ऑल द पीपल हु हैव गॉट द अवार्ड. ओके, मैंने क्या किया, इनमें से एक बंदे का नाम जिसको पद्म विभूषण मिला था उसका नाम मैंने आपको यहां पे डाल दिया. इसकी जगह पे मैंने उनका नाम डाल दिया टू कंफ्यूज यू. आंसर इज थर्ड वाला. ही हैव गॉट पद्म विभूषण ने की जगह पद्म श्री, पद्म भूषण. अब इतना दिमाग कौन लगाएगा यार? सी टोटल 119 नाम याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गो थ्रू द पद्म विभूषण, 7 पीपल. ठीक है, इनमें से क्वेश्चन वी कैन सॉल्व. यार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री कितने हैं यार? ऐसे तो 119 तो इस साल के मिले हैं. ओके, GDP of India is expected to contract by how much percentage? GDP of India is expected to contract by how much percentage according to the National Statistic Organization? 7.7, 10, 8.3 and 9.5. अरे इसका आंसर बड़ा मजेदार है. ये जो आर्टिकल पढ़ोगे ना, वर्ल्ड बैंक ने बोला है 9.6, या इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है 7.7, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज IIS ने कुछ 8.9 कुछ और बोला है, डोमेस्टिक रेटिंग ने कुछ और बोला है. कितने याद करोगे यार? फाइन, कितने याद करोगे? अरे यार बाबा ऋषिकेश, आई नो दिस क्वेश्चन अबाउट NSO, बट व्हाट इफ दैट टुमारो द क्वेश्चन कम ऑफ वर्ल्ड बैंक, दिस एंड दैट. ठीक है, तो 7.7 इज द आंसर इन दिस केस. वर्ल्ड बैंक का आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा. तुक्का मत मारो. ठीक है, अब गिवन यू व्हेन टू तुक्कोफाई. तुक्का तब मारने का जब 2 ऑप्शन अपने पास हो. ओके, लास्ट क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर मोदी, PM जी का नाम बिना तो PPT खत्म नहीं होती हमारी आजकल. हैव चेयर द 31st प्रगति मीटिंग. प्रगति की फुल फॉर्म बता दो भैया, आशीष से. इज माई रिक्वेस्ट टू यू, माइक पर गाली मत दो यार प्लीज, बहुत दुख होता है. ठीक है, इंस्टीट्यूट होने के चांसेस कम है.
मुझे भी लगा था कि प्रधानमंत्री इज द मोस्ट कॉमन, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया तो प्रधानमंत्री होने के चांसेस ज्यादा है, नहीं, आंसर इज बी बॉम्बे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ओके, answer is B Bombay. So I have to read the news. The moment you read the news, don't just read the first line. प्रधानमंत्री जी ने 35 को 35th प्रगति मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, डन। बट उसमें क्या बात हुई, प्लीज, देयर वर 9 प्रोजेक्ट विच वर रिव्यूज एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन अनुषधि परियोजना प्रगति स्टैंड फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्लीज रीड द कंप्लीट आर्टिकल, डोंट जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन, प्लीज, दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, चलेगा। इन योर लॉगिन आईडी एवरीथिंग इज गिवन, प्लीज चेक इट आउट। ओके।